Hello everyone, this is Jeet Patel and I am going to reveal in this video what are the 7 habits that could change my life completely from the inner side. So let's learn and I share my screen. I am going to reveal about my 7 habits that could change my life. And if you apply in your life, definitely you can feel change from the inner side. Okay. So 7 habits that changed my life completely. ये पहली हैबिट्स है और वो है माइंडसेट। माइंडसेट इज एवरीथिंग। अब पहले मैं माइंडसेट को इतना सीरियसली नहीं लेता था, बट जब मैंने सीखा कि माइंडसेट इज एवरीथिंग, आपको चेंज होना है फ्रॉम द इनर साइड। इफ यू आर नॉट रीच, इफ यू वांट टू रीच, सो माइंडसेट यू नीड टू चेंज फर्स्ट। ओके, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर life, you want to grow your business, so you need to first change your mindset. Okay, so कैसे आप चेंज कर सकते हो अपना mindset? So before that I was totally different, but after learning mindset, so now I can understand what is the difference of mindset before that and after that. So मैं क्या करता हूँ, मैं अभी helping others, देखिए दिस इज द माइंडसेट आई हैव डेवलप्ड। मैं अभी जो भी करता हूँ मेरे बिजनेस में जो भी है वो दूसरों की हेल्प करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं ऐसा नहीं, पहले तो मैं जो भी मेरी प्रोडक्ट होती थी, मेरी सर्विसेज होती थी, वो मैं बेचता था सिर्फ। लेकिन जब मैंने माइंड चेंज किया, अब मैं दूसरों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ यूजिंग माई सर्विसेज। ओके, दिस इज द माइंडसेट आई चेंज, एंड व्हेन आई चेंज दिस माइंडसेट आई completely change my business, completely change my life. Okay, and second mindset change is goal writing. Every day in the morning at 5 o'clock in the morning, I write down my goals list. Okay, goals for 3 months, goals for next 6 months, goals for next 1 year and 3 years. Okay, every day I write my goals, and after waking up, I also write down my daily task, whatever I need to do. To-do list I create for myself. This is goal writing, and goal writing helped me a lot in to change my life. Okay, and third one is fighting group. You can't go alone to the way of successful. Okay, you need group association. जैसे आप रहते हो अभी, और जैसे आप अगर बिजनेस पर्सन हो तो आपके साथ बिजनेस पर्सन के ग्रुप के साथ आप जुड़ जाओ, तो वहां पे क्या होगा, एक दूसरे के साथ शेयरिंग होगी, वैल्यूज शेयर होगी, आइडिया शेयर होगा, तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस को ग्रो मिलेगा। तो दिस इज द माइंडसेट आई चेंज completely, and if my business change completely, definitely your business will change completely. And second one is money. मनी को मैं पहले इतना सीरियस नहीं लेता था। जब मैं सक्सेसफुल नहीं था, या बोला जाए तो मैं जो भी बिजनेसेस करता था उसमें कोई ऐसा मेरा इंटेंट इतना नहीं था कि मैं मनी को मैनेज करूं। डेफिनेटली मैंने मनी बनाया था, मैंने पैसे बनाए, बहुत पैसे बनाए, लेकिन उनको मैनेज करना और किस हिसाब से मनी का मैनेजमेंट होता है वो जब मैंने सीखा, तो मेरी लाइफ और मेरा बिजनेस कंप्लीटली चेंज हो गया। सो अब मैं उसमें आपको बताऊं तो मनी के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट से मेक मनी। आप जो भी करते हो, आप बिजनेस करते हो या आप जॉब करते हो, ठीक है, वो मेक मनी होता है, वो आपकी एक्टिव इनकम होती है। ठीक है, आपके बिना वो इनकम जनरेट नहीं होती, इसलिए उनको बोला जाता है एक्टिव इनकम। तो अगर एक्टिव इनकम आपको जनरेट करनी है तो वो मेक मनी के अंदर आती है। ठीक है, लेकिन उससे भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट से मैनेज मनी। लेट्स से इफ यू आर अर्निंग 1 lakh per month, but you don't know how that 1 lakh money manage. Okay, how you manage your 1 lakh money every month, so you are not good at. But what happen if you are not good at managing your 1 lakh money, but if you earn 5 lakhs money, 10 lakhs money per month, so what happen, you can't money 5 lakhs and 10 lakh money, you can't manage those money. Okay, so learn how to manage money, and then automatically your money grow. And third part is grow. Grow is whatever you earn, you need to save 10% at least to grow, to invest your money. Okay, and three element of money I learned in my life, I learned these 3 element and I changed completely
my money mindset. Okay. And third habit is inputs in my mind. Okay. मैं क्या अपने माइंड को इनपुट देता हूँ? गार्बेज न्यूज। पहले मैं डेली न्यूज़पेपर रीड करना, डेली न्यूज देखना, टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर देखना, वो सब इतना मुझे परेशान करता था। पूरे दिन भर मेरी जो भी गोल सेटिंग, जो भी मेरे टास्क होते थे, वो सब डिस्टर्ब हो जाते थे, क्योंकि पहले ही मैंने मॉर्निंग में ही मैंने अपने दिमाग को गार्बेज दे दिया। वो गार्बेज इतना कि कहीं क्या हो रहा है उसका न्यूज ये इतने बड़ा चढ़ा के देते हैं हमें कि जैसे हमारा पूरे दिन माइंड में वही चलता रहता है। तो वो गार्बेज न्यूज मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया। मैंने अपने माइंड को इनपुट्स ही नहीं दिया कि गार्बेज न्यूज, नो। राइट। नेगेटिव पीपल, जो पीपल नेगेटिव है, जिसके अंदर कोई आइडियाज नहीं है, माइंड के अंदर आइडियाज नहीं है, जिसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट ही नहीं है, तो उनके मुंह से ऑलवेज नेगेटिव वर्ड्स निकलते हैं। जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं। हम कभी नेगेटिव वर्ड से हम कभी एक्टिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अंदर से हम फील नहीं कर पाते हैं कि हमें हमारा गोल कंप्लीट करना है, ठीक है, हमें ग्रो करना है हमारी लाइफ में। लेकिन नेगेटिव पीपल को जब मैंने साइड कर दिया, ठीक है, उनको अपनी लाइफ से हटा दिया, मैं कभी उनकी सुनता नहीं हूँ, तब से मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। मैं जो भी सुनता हूँ, पॉजिटिव टॉक सुनता हूँ इन द मॉर्निंग, तो मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। मेरी हैबिट्स यही है, जो ये हैबिट से मुझे पॉजिटिविटी महसूस होती है। पॉजिटिविटी जो है वो मुझे मेहनत करने में और दूसरों की हेल्प करने में मुझे मदद करती है। तो सेकंड वन, इनपुट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। साइड avoid those negative peoples, okay, and productive ideas. Every day I write down most 10 productive ideas, okay। कौन से वो आइडियाज है जिससे मेरा बिजनेस, मेरी लाइफ ग्रो हो सके और मैं चेंज हो सकूं, ठीक है। वो आइडियाज नोट डाउन करना और डेली नोट डाउन करना। सो यस्टरडे मैंने जो नोट डाउन किया था वो नेक्स्ट डे मैं वापस से एक बार उनको रिव्यू करता हूँ कि यस्टरडे जो भी मेरा टास्क था, जो भी मेरा आइडियाज था, वो नेक्स्ट डे उसमें से कितने जो आइडियाज हैं वो जो इम्प्लीमेंट कर सकूं, ओके। दिस इज द इनपुट। एंड जैसे आप इनपुट आप डालोगे वैसे ही आपका आउटपुट आएगा। अगर आपने गार्बेज इन किया तो गार्बेज आउट होगा। अगर आपने प्रोडक्टिव आइडियाज इन किए तो प्रोडक्टिव आइडियाज आउटपुट होंगे, आपका बिजनेस ग्रो होगा, आप खुद अपनी लाइफ में ग्रो होंगे। एंड नंबर 4 हैबिट्स that could change my life, learning. Learning, that means earning. Yeah, learn more and earn more, okay. So what I developed in my learning habits, mentors is guru. In India, without guru you can't grow in your life, in your business. So mentors, आपको मेंटर्स चाहिए। आपका हर एक लाइफ के अंदर अगर आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो आपको हेल्थ का स्पेशलिस्ट चाहिए, जो आपका जो भी प्रॉब्लम से, जो भी आप पेन पॉइंट्स आपके अंदर है उनको आप सोल्व कर सको। तो मेंटर्स इज गुरु। गुरु, अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो जो भी मार्केटिंग गुरु होते हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे आपका बिजनेस कैसे ग्रो हो सके। और मैं एज ए मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं सबकी हेल्प करता हूँ। आप अपना बिजनेस में किस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी ले सकते हो और रेवेन्यू जनरेट करके सेल्स बढ़ा सकते हो। एंड सेकंड वन, लर्निंग इज स्किल डेवलपमेंट। जिसके पास ज्यादा स्किल है उनके पास ज्यादा मनी है। तो अगर आप डॉक्टर हो, डॉक्टर्स में भी नई नई आइडियाज, नए नए स्किल्स जो डेवलप करते जाओगे आप, तो डेफिनेटली आप अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अगर जो भी आपका बिजनेस है, skill development is the most important to grow in your business, right? And tools, that means in we are living in digital world. So digital world के अंदर हम डेली इतने टूल्स से हमारी लाइफ को आसान कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करते थे, अभी आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप डिफरेंट टूल्स है, कैलकुलेटर है, ट्रांसलेटर है। अगर आप कोई लैंग्वेज के साथ आपको कोई वर्ड में डिफरेंट है तो ट्रांसलेट यूज कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग आप अलार्म यूज कर सकते हो। कॉलिंग करने के लिए ऐप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी एप्लीकेशन है वो सब आपके टूल्स है। उसमें से जो भी टूल्स आपको ग्रो करवा सके, जिससे भी आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ, मेरा बिजनेस ग्रो हो सकता है, वो टूल्स का आप लिवरेज करिए, ठीक है।
तो वो लर्निंग है, टूल्स को सीखिए, और टूल्स जो है वो हमारी लाइफ आसान कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से उनको यूज करना सीख गए तो। ठीक है, ये लर्निंग है। लर्निंग मैंने जब अप्लाई किया, ये फोर्थ हैबिट जब मैंने अप्लाई किया मेरी लाइफ में अच्छी तरह से, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। ठीक है, और नंबर फिफ्थ हैबिट इज री इन्वेस्टिंग। वट एवर आई अर्न, आई री इन्वेस्टेड इन माई बिजनेस। ओके, सो बिजनेस, जैसे जैसे मैं 10 लाख रुपए कमाया तो वापस से मैंने बिजनेस में 3 लाख रुपए डाले, क्योंकि बिजनेस में और ग्रो करना है। ठीक है, अगर आप री इन्वेस्टिंग नहीं करोगे अपने बिजनेस के अंदर तो बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता, बिजनेस टेक हो जाएगा वहीं पे। तो बिजनेस के अंदर कंटिन्यूस आपको इन्वेस्ट री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, री इन्वेस्ट टर्म्स ऑफ सेल्स, री इन्वेस्ट टर्म्स ऑफ पीपल। आपके पास कोई पर्सन रखना है, सेल्स पर्सन रखना है, कोई भी जो आपका काम आसान कर सके उनको आप हायरिंग करनी है, तो वो सब री इन्वेस्टिंग किया जाता है। नई टेक्नोलॉजी री इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग में इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स इज नंबर वन इन्वेस्टिंग आइडियाज फॉर द एवरी बिजनेस पर्सन। सो आपको पहले मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है ताकि आपका सेल्स रेवेन्यू ग्रो हो सके, तो उससे बाकी का जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो बिजनेस अपने आप कर पाएगा। सो डेफिनेटली आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? बिजनेस के अंदर। लर्निंग, आपको खुद को अपने ऊपर, लर्निंग के ऊपर आपको पैसे डालने हैं। ठीक है, ये री इन्वेस्टिंग बोला जाता है। और जब आप खुद जितना सीखोगे, ठीक है, आपका लेवल अभी इतना है सीखने का, तो इतना ही बिजनेस ग्रो होगा। अब अगर आपने कुछ ज्यादा सीखा, आपने कुछ ज्यादा स्किल डेवलप कर दिया, तो आप यहाँ पे होगे, आपका बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा यहाँ पे। सो वही होता है, अगर आपका अभी रेवेन्यू 1 लाख का है, आपको करना है रेवेन्यू 3 लाख का, तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा 3 लाख का रेवेन्यू कैसे किया जाता है, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, लर्निंग के ऊपर आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और तभी आपका रेवेन्यू 3 लाख का हो सकता है। दिस इज द सिस्टम आई डेवलप दिस हैबिट फॉर माई सेल्फ एंड आई ग्रो अ लॉट। एंड थर्ड वन इज सेविंग मनी। जो भी आप पैसे कमा रहे हो उसमें से 10% आपको सेविंग करना है फॉर योर लाइफ, फॉर योर फ्यूचर। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उनको भी री इन्वेस्टिंग करते जाना है। ठीक है, उनको बोला जाता है जो भी सेव आप मनी करते हो, ठीक है, उसको भी री इन्वेस्ट करते जाइए, ताकि फ्यूचर में जो भी आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस आने वाले हैं, फ्यूचर जो भी ऐसी कोई एक्टिविटी होने वाली है, आपका जो एक्सपेंसेस बढ़ने वाला है, तो वो सब आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड री इन्वेस्टिंग। आई अप्लाइड दिस मेथड फॉर माई life, for my business. And sixth one is improving, continuous improving. Okay, जो पहले जो मैं था उससे डेली मैंने इम्प्रूव किया, डेली कुछ नया सीखा, डेली कुछ नया अप्लाई किया इन माय बिजनेस, सो आई इम्प्रूव अ लॉट। सो इम्प्रूव बाय टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, आप अभी जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, वो प्रोडक्ट के ऊपर क्या आप इतना कुछ उसमें एडिटिंग कर सकते हो, या उसके अंदर आप क्या ऐसा कुछ चेंजेस कर सकते हो कि प्रोडक्ट पहले से बेहतर बन जाए, पहले से इम्प्रूव प्रोडक्ट कैसे हो जाए, या आपके जो क्लाइंट है, आपके टारगेट ऑडियंस है, उनको बेहतर प्रोडक्ट आप किस हिसाब से दे सको, उसके अंदर आपको इम्प्रूव कंटिन्यूस, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, अपने आप खुद को भी आपको कंटिन्यूस इम्प्रूव करते रहना है। ठीक है, और प्रोसेसेस, प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपका बिजनेस है उसमें प्रोसेसेस होती है, जैसे जैसे कस्टमर का इंक्वायरी आता है, कस्टमर को फॉलोअप होता है, कस्टमर को सेल्स होता है, उनको प्रोडक्ट डिस्पैच होता है, डिलीवरी सिस्टम होती है, उनका मनी जो पेमेंट कलेक्शन होता है, फिर वो पेमेंट कलेक्शन का मैनेजमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, टर्म्स ऑफ जीएसटी फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी एक्सपेंसेस, वो सब प्रोसेसेस किया जाता है। वो प्रोसेसेस में जितना भी आप अच्छा इंप्रूव करोगे, तो ये साइकिल जो है ना, वो साइकिल इजीली चलती रहेगी और आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा। ठीक है, और सिस्टम, सिस्टम इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो आपका बिजनेस को ग्रो करवा सकती है इजीली, बिना आपका इन्वॉल्वमेंट हुए इन बिजनेस। ओके, आप अगर एक महीना बिजनेस के अंदर आप नहीं एक्टिव हो, फिर भी आपका बिजनेस सेम तरीके से चलेगा जैसे आप बिजनेस के अंदर प्रेजेंट हो। तो यही आपको अपनी सिस्टम डेवलप करवानी है, ताकि बिना आपके बिजनेस आपका चलता रहे। वो क्या सिस्टम से, वो क्या प्रोसेसेस है, वो सब आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा आपके बिजनेस के अंदर, आपके खुद की लाइफ के अंदर। ठीक है, वो इम्प्रूविंग जो हैबिट है वो मुझे इतना फायदा दे के गई है, ताकि मेरी लाइफ आज कंप्लीटली चेंज हो गई है। और लास्ट हैबिट इज मिनिमलिज्म। पहले मैं मिनिमलिज्म में बिलीव नहीं करता था, मैंने बहुत पैसे
वेस्ट किए इन टर्म्स ऑफ नई गाड़ी, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट्स, मकान, होम, और क्लोथ्स, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट अटायर। ओके, सो वो सब इतने इतने थे कि उसके अंदर मेरा बहुत सारा मंथली बोला जाए और ईयरली जब मैंने उसके अंदर देखा तो वो इतने सारे मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए पैसे। एक्सपेंस जो मेरा था वो इतनी कॉस्ट मेरी आई। तब मैंने सोचा कि मुझे मुझे मिनिमलिज्म के हिसाब के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। सो मिनिमलिज्म में क्या होता है, लेस इज मोर। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मिनिमलिज्म वो है जो जिसके अंदर हम नहीं कर सकते, वो मोंक सिर्फ मिनिमलिज्म में जी सकते हैं, लेकिन लेस इज मोर। आपके पास जितना कम होगा वही हमारी लाइफ को ज्यादा पे ज्यादा बेहतर करेगा। ठीक है, तो लेस इज मोर जब मैंने सीखा तो उससे मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। और सिंप्लिसिटी, आप सिंपल रहिए, अपनी लाइफ में सिंपल रहिए, अपने बिजनेस को भी सिंपल बना के रखिए। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कोई सिस्टम प्रोसेस मत करिए, ताकि सेम प्रोसेस में अगर आपको 2 घंटा लगता है तो वही प्रोसेस के लिए 2 दिन क्यों लगाए। तो प्रोसेस को सिंप्लिसिटी करिए, अपनी लाइफ को भी सिंप्लिसिटी कर दीजिए। जैसे मैं टी शर्ट पहनता हूँ, कोई ऐसे अटायर्स नहीं है, कंप्लीटली मैं सिंपल हो गया हूँ। ठीक है, इतना कोई ज्यादा ज्यादा ये अटायर में कोई नई एक्सपेंसिव, जितना भी सिंपल रहेगा उतनी लाइफ हमारी सिंपल रहेगी। ठीक है, सेइंग नो। आपके अंदर आपका बिजनेस है, उसके अंदर जो भी आपको इम्पोर्टेंस है उसके अंदर आपको अच्छी तरह से फोकस देना है। अदर्स एक्टिविटी ऐसी है कि जो आपका बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा सकती है, उनको आप नो बोल दीजिए। नो। लाइफ में भी सेम अप्लाई होता है। अगर लाइफ को ग्रो करना है, लाइफ में आपको बेहतर बनना है, तो उसमें जो भी एक्टिविटी ऐसी है जो आपको नीचा रखती है, आपको ऊपर नहीं ले सकती है, ऊपर उठा नहीं सकती है, तो उनको नो बोल दीजिए। ठीक है, ये जो 7 हैबिट्स है, ये इतने इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मुझे इससे फायदा हुआ है तो डेफिनेटली इसमें से जो भी आपको ऐसी हैबिट लगे, आपको डेवलप करने की, आपको आपके माइंडसेट में कुछ ऐसा लगे कि ये डेफिनेटली हैबिट से मेरी लाइफ, मेरा बिजनेस चेंज हो सकता है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें जो भी हैबिट्स है वो मेरी ओन हैबिट्स, जिससे मैं कंप्लीटली चेंज हुआ हूँ। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस मैंने कर लिए हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत सारा है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस का। लेकिन जब मैंने ये 7 हैबिट्स जब मैंने अप्लाई की मेरी लाइफ में, सिंप्लिसिटी और माइंडसेट, लर्निंग, उससे मेरी लाइफ, मेरा बिजनेस कंप्लीटली चेंज हो गया। आज मुझे कुछ और चीज की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जिससे मेरी लाइफ और बेहतर बन सके, क्योंकि मैंने सिंप्लिसिटी अप्लाई कर ली है। So guys, hope if you like this video, you can hit like button below. And if you are watching on YouTube, subscribe my YouTube channel. So next time, whenever I upload new video, you will get notification as a priority. So thank you and bye bye.